Hello everyone, how are you all doing? So this video is about economic and financial affairs. We'll also be discussing about some general awareness topics which would be helpful for your RBI grade B, SEBI grade A and UPSC examination. Okay, so in this video we are going to discuss about the current affairs of November month. We'll be getting started with them shortly, but before that I would like to tell you that Ruhi ma'am is one of the recognized educators on Unacademy. There she handles all the comprehensive courses for SEBI grade A, RBI grade B examination. So if you are preparing for these two examination or any other bank or insurance examination, then you can go for her courses on Unacademy Plus. ओके तो उनके कोर्सेज जो हैं वो अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल हैं. उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. ऑलराइट, इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. ओके, सो उससे पहले ये बता दूँ मैं आपको दैट दीज आर द कोर्सेज विच आर टेकन बाय रूही मैम ऑन अनअकैडमी प्लस. Like if you are preparing for RBI grade B phase 2, SEBI grade A paper 2, banking, financial, economic awareness, current affairs for all bank exams, insurance awareness for all insurance exam. Okay, so it would be very beneficial for you to join her courses. Okay, you can learn from her by getting the subscription on Unacademy. नाउ अब हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं. Okay, so very first point here is that if you are getting the subscription on Unacademy, the most important thing is that you can avail all the courses which are available on Unacademy and you can learn from them by sitting at your home itself. ओके आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप घर पे बैठे बैठे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. अब वो एग्ज़ाम बैंक एग्ज़ाम हो सकते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम हो सकता है, गेट एग्ज़ाम हो सकता है एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. Okay, so this is the biggest advantage that you are getting after getting the subscription on Unacademy. Okay, then the second point is that जो भी आपको educators मिलेंगे, they will be top educators of our country. Okay, and they will be available at a single platform. Okay, so this is also a very big advantage that they will be अवेलेबल एट सिंगल प्लेटफॉर्म. सो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज के लिए इधर उधर नहीं जाना है. आप एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. ओके, एंड उसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स टॉप एजुकेटर्स के थ्रू ही पढ़ाए जाएंगे. एंड अगर आपको किसी भी एजुकेटर की जो पढ़ाने की टेक्निक है वो समझ नहीं आती है या उनका तरीका पसंद नहीं आता है, आप एजुकेटर्स चेंज भी कर सकते हैं. ओके, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं उसके साथ you can continue with the courses. Now the point is that you are also getting the live test series. Okay, the study material like PDF and videos. All right, there would be doubt clearing sessions and all those who are preparing for UPSC, they can go for answer writing sessions, right? And also the most important thing is that each and every student will be getting a personal mentor who will be guiding him through this entire process. ओके, आप अपने प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट टीचर और गाइड. ऑलराइट, so these are some of the advantages that you are going to get with just one subscription on Unacademy. Okay, so for that, now subscription अब आप लेने जा रहे हैं, then I would like to tell you that this is a price hike alert. If you are going to get the subscription, then get it before 31st of December. Alright, because after this there would be increase in the prices. So if you don't want to pay more, then please get the subscription before 31st of December. Okay, this is the deadline. After that you will have to pay more for the subscription. Alright, now मैंने आपको सारे benefits बता दिए हैं कि सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. देन यू कैन ईजिली conclude that it is the one stop solution to crack all your exams. Okay, it's not about just bank exams. आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी गेट जैसे मैंने आपको बताया था, साथ ही कोई भी दूसरे बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेबी ग्रेड ए एंड एसबीआई, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां ऑल द टॉप एजुकेटर्स वुड बी टीचिंग यू ऑल.
ओके सो उसमें क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस प्रॉपर जैसे आप समझ सकते हैं कोचिंग्स में जैसे होता है वैसे ही अनअकैडमी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो आपको बेटर देन कोचिंग्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं. Okay, so I would like to suggest you all to get the subscription on Unacademy, and that too before 31st of December, because after that there would be hike in the prices. Alright, now let's move ahead. ये देखिए कोड है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको कोड यूज़ करना है SC10. इस कोड को यूज़ करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. And secondly, you can access free content which is available over there. Okay, Unacademy अगर आपसे कोई भी इनवाइट कोड या फिर कुछ भी अनलॉक करने के लिए कोड मांगता है, then you have to use this code SC10 to access the content. Alright, this is the channel, okay, Telegram channel which is owned by रूही मैम. सो इट इज़ नेम्ड एज सिंपल कॉन्सेप्ट्स बाय रूही मैम. तो आप अगर उनके कोर्सेज ले रहे हैं तो आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है, अपडेट्स रिगार्डिंग योर अपकमिंग कोर्सेज, ऑलराइट, एंड ऑल्सो द डाउट क्लियरिंग इट वुड बी डन हियर ओनली. ओके, आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा इसी चैनल पर. सो डू ज्वाइन दिस चैनल Simple Concepts by Ruhi ma'am on Telegram. Alright, now we are getting started with our articles. तो कुछ important चीज़ें हैं जो हमें इसमें डिस्कस करनी है. पहली important चीज़ है कैपेसिटी बिल्डिंग component of PM-FME स्कीम इनॉग्रेटेड. अब देखिए यहाँ पे इनॉग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सब आपको पता है, बेसिक सी बात है. देखिए आपने इतने सारे वीडियोस देख चुके हैं, आप हेडलाइन पढ़ के ही समझ सकते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है. तो अब इसमें इनॉग्रेशन के बारे में नहीं पूछेंगे, बट द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर आर फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है, दूसरी चीज़ है PM-FME स्कीम क्या है. ठीक है, तो दो ही चीज़ें हैं. देखिए आपको पता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब किसी भी चीज़ की, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल की जो इंटरनल कैपेसिटी है या फिर उसकी जो इंटरनल पार्ट्स है, ओके, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना कैपेसिटी बिल्डिंग होता है. उनके पास ऑलरेडी कुछ दे ऑलरेडी possess सम एट्रीब्यूट्स, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी इंडस्ट्री की अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है तो उसके पास ऑलरेडी कुछ मशीन्स हैं, तो उन मशीन्स का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग. अगर हम इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो उसके पास जितने भी कैपेबिलिटीज़ हैं, ओके, एंड उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, तो उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग कहलाया जा रहा है. अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, और मैंने ये इसलिए बोला कि पता ही होना चाहिए क्योंकि देयर वुड बी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो उनको मिशन कर्मयोगी के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, एंड आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, आप जब किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं. Okay, so that is very important program because it has been launched for you people, right? So मिशन कर्मयोगी क्या है आपको वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. ऑल राइट, ब्रीफली बताइए कि मिशन कर्मयोगी क्या है, ओके, एंड व्हाट इज़ द रीज़न इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको मोदी जी ने भी काफ़ी फोकस करके बोला था, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे मित्रों करके उन्होंने बोल दिया है तो इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, उनके मित्रों जो स्टार्ट होता है ना तो वो समझ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हैं. सो नाउ द पॉइंट हियर इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट PM-FME. ओके, सो न्यूज़ में रिसेंटली ये आया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, दे हैव इनॉग्रेटेड द कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम.
ओके, सो PMFME स्कीम ये है आपके प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। सी, ये जो स्कीम चलाई जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीम्स किसी भी बिगर एंटरप्राइजेस के लिए नहीं चलाई जाती हैं। ओके, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं होगी जो अदानी और अंबानी के लिए लाई जाएगी। ठीक है, उनके जो काम हैं वो अलग ढंग से होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उनको किसी स्कीम के अंडर बेनिफिशियरी नहीं समझा जाता, क्योंकि भाई उनके पास इतना पैसा है, दे डोंट नीड सपोर्ट, राइट? they do not have to be beneficiary under this scheme. So the point here is that it is for micro food processing enterprises. ओके, जिनके अंदर अभी कैपेसिटी है ग्रो करने की। ठीक है, गवर्नमेंट को दिख रहा है दैट देयर आर चांसेस दैट इट वुड जनरेट फाइनेंसेस एंड इट वुड हेल्प इन ग्रोइंग आवर इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देती है कुछ सब्सिडीज़ के रूप में, जिससे कि उससे हमारी इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिल सके। तो ये स्कीम माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए ही है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो फ्यूचर में ग्रो कर सकती हैं, उन्हीं के लिए ये स्कीम चलाई गई है। रिसेंटली उनके पास उतना कैपिटल नहीं है, लेकिन दे हैव आइडियाज़, ओके, दे हैव कॉस्ट कटिंग टेक्टिक्स एंड ऑल्सो दे हैव विजन टू ग्रो इन द फ्यूचर। ओके, सो इसकी वजह से PMFME स्कीम को लॉन्च किया गया। यहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो आ ही गया दैट व्हाट इज PMFME स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ऑलराइट, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, मोदी जी ने बोला है मित्रों, तो इसका मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। सी, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर कि अगर मोदी जी ने बोल दिया है मित्रों हम FME स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, है ना, सो इजी टू लर्न इट। देन व्हाट इज द एम? फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज दैट okay, the competitiveness of existing individual micro enterprises in unorganized segment. See, organized segment and unorganized segment, they both have different conditions, है ना, they work in different conditions, and also the capital use is different, the labor employment is different, each and everything is different, right? इवन इफ दे आर वर्किंग इन द सेम सेक्टर, वो दोनों फूड इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक अनऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, तो डिफरेंसेस आपको पता ही है कि क्या क्या होते हैं। सो ये जो स्कीम है, इसमें ये बोला गया है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं या जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो उनके जो कॉम्पिटिटिवनेस लेवल है उसको इन्हेंस करने के लिए FME स्कीम लॉन्च की गई है। टू प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर, ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हम उसको मूव फॉरवर्ड करें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ। ठीक है, नॉट कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन कुछ ऐसी बेनिफिट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले इंडस्ट्रीज को मिलते हैं, तो वो बेनिफिट्स हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी दें, सम ऑफ देम। ठीक है, सारे नहीं दे सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, राइट? तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेवलपमेंट हो, तो ऐसे बेनिफिट्स इस स्कीम के थ्रू उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, उनको फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स अलोंग देयर एंटायर वैल्यू चेन। सी, अब जो ऐसी फूड इंडस्ट्रीज हैं, ओके, माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज हैं, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कैसे जुड़ी हुई है? अब कोई भी फार्मर है, ओके, तो उनका जितना भी क्रॉप्स है वो FPO के पास है, ओके, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अब वो FPO जो है वो बेटर प्राइसेस के लिए FME स्कीम के अंडर ये फूड इंडस्ट्रीज को अगर अपना क्रॉप्स बेचते हैं तो उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है तो जो फार्मर्स हैं उन तक ऑटोमेटिकली बेनिफिट पहुंच जाएगा। सो इट इज़ समथिंग दैट वुड ऑल्सो हेल्प योर फार्मर्स, राइट? सो FPO है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, एंड प्रोड्यूसर्स कॉर्पोरेटिव्स। ओके, सो ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डिपेंड करते हैं माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज़ पर, तो उनके लिए भी ये स्कीम काफ़ी
हेल्पफुल है। एंड रीसेंट पिक्चर में अगर हम देखें, ये देखिए आपको कहाँ पे हेल्प करने वाली है। अभी आपने देखा कि जो फार्मर्स है, जो फार्म लॉज आए हैं, ठीक है, तो उसमें से जो दूसरा लॉ है नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, सी दिस फार्म लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दे हैव बीन इन कंट्रोवर्सी फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड स्टिल दे आर। अभी भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, इनकंक्लूसिव है आपके जितने भी टॉक्स हुए थे फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच। तो वो सोल्यूशन हमको नहीं पता, लेकिन हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने जा रही है, ओके, उससे भी स्कीम का देयर इज अ रिलेशन, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो ये SHGs हैं, तो ये जो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कैसे वे में अफेक्ट करती है, लेट्स सी दैट, ओके। सो विजन इज टू डायरेक्टली असिस्ट 2 lakh micro food processing units for providing financial, technical and business support for upgradation of existing micro food processing enterprises, ओके। सो 5 साल के दौरान 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को एज सब्सिडीज, है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनको कैश प्रोवाइड कर देंगे। सो हियर एंड देयर दे विल बी प्रोवाइडेड सम सब्सिडीज एंड 2 lakh माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैव बीन इंक्लूडेड, राइट। तो उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सी द पॉइंट हियर इज दैट, मैंने आपको एक बात बोली कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि देखिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें ज़्यादातर छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ओके, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं हैं। जो प्रपोर्शन है वो छोटी इंडस्ट्रीज ज़्यादा कैरी करती हैं, ओके, वो ज़्यादा परसेंटेज में अवेलेबल रहती है। इसी के लिए जो माइक्रो यूनिट्स होती हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बिकॉज दे आर मोर इन नंबर, दे इफ़ दे आर ग्रोइंग देन द इकोनॉमी वुड बी सपोर्टेड। सो दैट इज़ द पॉइंट। नाउ दिस इज अनदर आर्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। हमारे जो नेबरहुड के साथ रिलेशंस हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया एंड भूटान टू वर्चुअली लॉन्च रुपे कार्ड फेज 2 इन भूटान, ओके। सो रुपे कार्ड जो है, ओके, उसको लॉन्च किया गया है इंडिया और भूटान के द्वारा वर्चुअली भूटान में, है ना। इसका मतलब यह है जो रुपे कार्ड इंडिया में यूज़ करते हैं हम उसको अब हम भूटान में भी यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियली, ऑलराइट। The two prime ministers had jointly launched phase 1 of the project during Indian PM's visit to Bhutan in August 2019. Alright, so August 2019 में फर्स्ट फेज इसका लॉन्च हुआ था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। The implementation of phase 1 of RuPay card in Bhutan has enabled Indian visitors to Bhutan to access ATMs एंड पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स अक्रॉस भूटान। सो वही मैंने आपको बात बोली है कि जो रुपे कार्ड हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं अब हम उसको भूटान में भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ एक्सेप्टेबल देयर एज वेल, ओके। सो फेज 1 में ऐसा पाया गया दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंडियन पीपल। नाउ फेज 2 will allow Bhutanese card holders to access RuPay network in India, okay। so phase 2 में क्या करेंगे कि जो भूटानीज कार्ड होल्डर्स हैं, ओके, उनको रुपे नेटवर्क जो इंडिया में चल रहा है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं अंडर दिस फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। सो या दिस इज, आपको पता है कि इंडिया और दिस बांग्लादेश एंड चाइना, नेपाल, तो ये कुछ ऐसे हमारे नेबर्स हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा शैतान है वो आपको पता ही है कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिसेंटली सिर्फ भूटान की बात करें, बड़ा ही शांत स्वभाव का कंट्री है ये भूटान, ठीक है, शांति से जीते हैं। शायद आपको याद हो कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स था, आई डोंट रिमेंबर दैट, किसी इंडेक्स में आप मुझे चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसी इंडेक्स में ऐसा कौन सा इंडेक्स था जिसमें भूटान टॉप पे रहा था, ठीक है। वहाँ पे शांति, जो शांति का स्वभाव है उसको बहुत अपनाया जाता है। उनको ना टूरिस्ट भी नहीं चाहिए, आपको पता है भूटान को टूरिस्ट भी नहीं चाहिए।
दे आर लाइक कि हम खुश है, हमें नहीं चाहिए पोल्यूशन, टूरिस्ट आएंगे तो पोल्यूशन आएगा, हाँ इकोनॉमी आएगी, लेकिन वो होता है ना कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतने में ही खुश है, उसे ज़्यादा कमाने की भूख नहीं है, वो इकोनॉमी वगैरह साइड में करके वो उनको शांति चाहिए, ठीक है, क्योस से दूर रहना है, टूरिज्म, इसीलिए वो ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते टूरिज्म को। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ भूटान, है ना, बड़ा अच्छा भाई है अपने इंडिया का, बड़ा छोटा भाई मानता है इंडिया भूटान को। ओके सो ये भूटान है एंड इसकी कैपिटल इज थिम्पू। नाउ वी आर मूविंग अहेड, पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल। ओके सो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा। ओके कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्कॉटलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। ओके स्कॉटलैंड कंट्री। नाउ व्हाट हैज़ बीन इन द न्यूज़, the Scottish Parliament passed a landmark legislation that has made period products such as sanitary pads and tampons free of cost to those people who need them. ओके सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है। ओके दिस इज सपोर्टिंग वुमेन। सो इसमें कि सैनिटरी पैड्स और टैम्पल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे जिनको भी ज़रूरत है। ओके सो दीज आर सम ऑफ द पीरियड प्रोडक्ट्स एंड इस बिल को नाम दिया गया है पीरियड प्रोडक्ट्स बिल, फ्री प्रोविजन। ओके दे विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल हु नीड देम। ओके स्कॉटलैंड हैज़ बीन द फर्स्ट कंट्री टू टेक सच अ स्टेप। ओके सो दिस कुड बी द क्वेश्चन कि पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री में देने वाला कौन सा कंट्री बन गया है रिसेंटली। So answer would be Scotland. The bill was passed with the aim of tackling period poverty. So see there are different kinds of poverty. So उसमें से स्कॉटलैंड ने आइडेंटिफाई किया है पीरियड पार्टी। ओके जिसमें कि पीरियड प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड देम। तो ऐसे ही लोगों के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स वुड बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। So central objective is very straight, that it want to end the silence and stigma that surrounds menstruation. Okay so this is very easy to understand that this bill is basically progressive because it is breaking the stigmas जो लोगों के हैं related to your menstruation, related to your periods and all, है ना, तो इस स्टिग्मा को ब्रेक कर रहे हैं। So this is very important and a very good step that has been taken by Scotland and काफ़ी appreciation भी किया गया था इसका, है ना। So it has been the first country. Now aim is to remove gendered barriers, है ना, तो barriers जो हैं उनको रिमूव किया बिकॉज सी स्टिग्मास जो थे वो इसी से रिलेटेड थे। ओके so this is also breaking the gender barriers to ensure that those who menstruate have reasonably convenient access to period products free of charge. See the point here is that कि अगर period products available नहीं रहते हैं, okay so those who are having this menstruation cycle they can also have hygiene problems. ओके सो उनके हेल्थ को भी काफ़ी रिस्क रहता है, तो इसीलिए इट शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल द पीपल शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल दिस प्रोडक्ट्स, है ना। तो इवन इफ दे कैन नॉट अफोर्ड इट, तो इसीलिए स्कॉटलैंड ने ये स्टेप लिया जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है ना। सो दैट्स इट। हाँ तो हम बात कर रहे थे पीरियड पार्टी की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे तरीके की पार्टी होते हैं, तो उसमें से पीरियड पार्टी जो है उसमें सैनिटरी या पीरियड प्रोडक्ट्स जो हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन एंड ट्रांस पीपल टू बाय देम फ्रॉम द मार्केट, है ना, बिकॉज ऑफ स्टिग्मास एंड ऑल। सो इट इज़ दिस लॉ इज़ बेसिकली आइडेंटिफाइंग दिस पार्टी, पीरियड पार्टी। ओके दिस इंक्लूड होम। नाउ अब व्हाट आर द रीजंस। पहली चीज़ ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मास की वजह से बाय नहीं कर पाते। द आंसर इज नो, देर आर मैनी रीजंस। ओके देर आर स्टिग्मास, येस, होमलेसनेस, okay then coercive, controlling and violent relationships and health conditions such as endometriosis. So these are some of the reasons why period party exist. Okay
सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर. ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको समझ के अच्छे से याद कर लें कि व्हाट इज पीरियड पार्टी, because it is something that is new, right? We have never seen such a step before, so this is something that is new. Now we are learning the lessons from Vietnam and Bangladesh. अब आप बोलेंगे ये क्या है, हम वियतनाम और बांग्लादेश से लेसन कैसे ले सकते हैं? सो हियर वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओके, आपको पता है एशिया में रिसेंटली काफ़ी बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है. ओके, एंड वो किसकी वजह से चल रहा है वो भी आपको रीज़न अच्छे से पता है. All right, so here the context is that Bangladesh has become the second largest apparel exporter after China, while Vietnam's exports have grown by about 240% in the past 8 years. So past 8 years में बांग्लादेश और वियतनाम के ट्रेड में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया को उसमें से सीखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. एंड डोंट वरी, हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं वो द हिंदू से होते हैं या आपके इंडियन एक्सप्रेस से होते हैं. ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हम डिस्कस करते हैं मेरी जितनी भी वीडियोस में, वो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस से ही उठाए जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम इंडिया के वो कितना ट्रेड रेडी है वो जानने की हम कोशिश करते हैं. एंड अगर इंडिया ट्रेड रेडी नहीं है तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, एंड ऑल्सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज टू कंट्रीज. क्यों इन दो कंट्रीज से ही सीखना है? बिकॉज वियतनाम एक काफ़ी छोटी सी कंट्री है. ओके, सो मैं चाहती हूँ दैट यू टेल मी द कैपिटल ऑफ वियतनाम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. Okay, you should keep revising the things so that they remain in your head. So I would need you all to answer this question in the comment section. Okay, so Vietnam and Bangladesh जो हैं दो countries हैं. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? So we are discussing two things. Okay, this is two countries. So जो ये दो countries हैं इनका ट्रेड वो है काफ़ी फ्लरिश किया in 8 years. So these are two small countries, you know that, right? Why have their trade flourished in last 8 years? एंड इंडिया को उनसे क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो समझने की हम कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले चलिए एक बात बताइए मुझे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? चाइना जो है टॉप पर रहता है ट्रेड में, राइट? नाउ द पॉइंट हियर इज दैट कि चाइना से क्यों ट्रेड बाहर होता जा रहा है? वाई आर पीपल अफ्रेड टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेड इन चाइना नाउ? सो पहला रीज़न है कोरोना, राइट? फर्स्ट रीज़न इज दैट. देन द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज दैट, देखिए कोरोना खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा. देन द इम्पॉर्टेंट रीज़न इज सैंक्शंस. ये कैसे सैंक्शंस है? सैंक्शंस जो आपके यूएस लगा रहा है, ठीक है? अब देखिए लोग डरे हुए हैं कि हम चाइना में ट्रेड करने जाएं, इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दें, एंड अगर कल को चाइना का मार्केट बैठ गया तो क्या होगा? क्यों बैठेगा चाइना का मार्केट? सैंक्शंस है ना, जो चाइना और यूएस की राइवलरी है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट यूएस सैंक्शंस लगा सकते हैं. एंड अगर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए तो आपको पता है सैंक्शंस लग जाते हैं तो ट्रेड डील्स आपकी बंद हो जाती हैं, राइट? जो कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज़ है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री जिस पर सैंक्शन लगा दिया जाता है उससे ट्रेड करना बंद कर देते हैं. सो यही आपको पता है कि रीज़न है वाई देयर इज़ नो मल्टीलेटरल ट्रेड इन साउथ कोरिया, राइट? क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं. सो इसीलिए चाइना में लोग बिजनेस करने से डर रहे हैं. ऑल्दो चाइना के पास मार्केट बड़ा है, ओके, चाइना का जो मार्केट है वो काफ़ी फास्ट है. सो even after having all these things, people are afraid to do business in China. And reason is very obvious.
राइट. सो द पॉइंट हियर इज दैट चाइना से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, अब वो अपना मार्केट धीरे धीरे वहाँ से हटा रहे हैं, तो उनको कहीं और सेटअप करना है, राइट. सो आपको पता है जो भी बिजनेसेस होते हैं चाइना में, वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. ओके, दे फॉलो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी. दिस इज द स्ट्रैटेजी कि वो पूरी तरीके से चाइनीज़ मार्केट पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं. ओके, दे वांट टू डू ट्रेड इन एशिया बट नॉट completely in China. ओके, सम ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वुड बी इन चाइना. ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में होंगी जहाँ पे चाइनीज़ मार्केट उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. बट टू अवॉइड द कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज़ मार्केट, दे हैव ऑल्सो वांटेड to establish the manufacturing units in other Asian countries. Okay, so this is the important point, that what is China plus one strategy. So वो चाइना के साथ साथ किसी एक और कंट्री में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं. सो दिस इज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी. ओके, एंड जो फियर्स हैं वो आपको पता ही है. ओके, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में. सो यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दोज रीजन्स. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. सो चाइना फर्स्ट पे है, ऑब्वियस सी बात है, बट बांग्लादेश और वियतनाम जैसी दो छोटी कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन द पास्ट 8 years. तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, एंड व्हाट इज़ द सक्सेस स्टोरी ऑफ वियतनाम. सो सी the two important points. See, we have already talked that trade is basically dependent on two things. First one is your workforce, okay, labor capital, then the market and a purchasing power, and the ease of doing business. This is the most important thing, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स ऑन विच ट्रेड डिपेंड्स. अगर किसी भी कंट्री में ट्रेड ईजी है या डिफ़िकल्ट है, इसको ही चेक करके कंपनीज आती हैं वहाँ पे अपना यूनिट सेटअप करने. सो जो वियतनाम है वहाँ पे काफ़ी कम पैसे में काम कर देते हैं लोग. इट मीन्स इन एक्सपेंसिव वर्क फोर्स. ओके, सो जो लेबर है दैट इज़ cheap there in Vietnam. Then open trade policy, mainly through free trade agreements, which ensure that its important trading partners like the US, the EU, China, Japan, South Korea and India do not charge import duties on products made in Vietnam. So this is easy to understand. We have already discussed that what is FTA. Okay, but let's understand it one more time. FTA क्या है आपका? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ये मान लीजिए कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है. यहाँ से जितना सामान जाएगा उस पर ये कंट्री 2 कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा. यहाँ से जितना सामान जाएगा उस पर ये कंट्री कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा. ओके, सो ऑल योर इम्पोर्ट ड्यूटीज आर कैंसल्ड. सो ये होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो वियतनाम जो कंट्री है उसके काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं. सो वो कंट्रीज़ के नाम हमने पढ़ ही लिए हैं. चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया जैसी, जापान जैसी कंट्रीज़ के साथ उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. सो दिस इज important point to be noted, that because of free trade agreements also Vietnam is growing in the trade, right. So the point here is that कि हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपका आसियान है ना, आसियान है आपका, RCEP हो गया, तो ये कुछ ऐसे ट्रेड डील्स है जो कि एशियन कंट्रीज़ के बीच में किए जाते हैं. तो आपको रिसेंटली पता है RCEP से इंडिया ने ऑप्ट आउट कर दिया है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि इंडिया जो है उसको अभी भी री एंटर करने का मौका दिया जा रहा है. India is still welcome to be in the deal, okay, even though India has opted out. Now I would like to ask you all that what are the reasons that India has opted out of RCEP, although it is not related to this one, but please answer that in the comment section. All right. Domestic laws modified to attract foreign firms.
ओके, सो दिस इज द अनदर रीजन, दिस इज द थर्ड रीजन दैट वी आर स्टडीइंग कि जो फॉरेन फर्म्स आती हैं ओके वियतनाम में लोकल बिजनेसेस को काफ़ी compete करती हैं। ठीक है, तो वही होता है किसी भी कंट्री में अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आती है तो जो लोकल बिजनेस है उसको अफेक्ट करती है, कंपटीशन बढ़ता है ना। तो वहाँ के जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको मॉडिफाई किया गया, जो फॉरेन फर्म्स हैं उनको स्टैब्लिश वहाँ पे करवाने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं हम कि ईयू फर्म्स हैं, ठीक है, जो ईयू से फर्म्स आते हैं वो वियतनाम में आपकी दुकानें खोल सकते हैं, रिटेल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ओके, एंड जो टेंडर्स होते हैं जिसमें देखिए किसी किसी कंट्रीज में ऐसे होते हैं जो आपके लोकल कंपनीज है, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, सिर्फ वही टेंडर फिल कर सकते हैं, है ना। जो प्राइवेट एंड पब्लिक टेंडर्स हैं वो सिर्फ वही फिल कर सकते हैं। बट हियर you know in this country the private sector and public sector, okay, the government sector, the tenders could be bid by foreign firms as well. Okay, they take part in electricity, real estate, hospital, defense and railway projects. Okay, so these are some of the projects in which the foreign firms can take place. So उनको यहाँ पे काफ़ी flexible market provide किया जाता है. Okay, and because of this flexibility they are being attracted to Vietnam. FDI linked export strategy. Okay, so this is also important that Vietnam received investments exceeding $16 billion. Okay, FDI जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वियतनाम का. As a result, Vietnam's exports rose from $83.5 billion in 2010 to $279 billion in 2019. ओके, सो जो FDI linked strategies है उनकी, they are also very strong and because of that export is increasing. There has been more investment in the country. Okay, so export is being increasing. The success story of Bangladesh. Okay, in Bangladesh, large export of apparels to the EU and US make the most of the country's export story. So बांग्लादेश जैसी कंट्री है वो आपके EU और US में काफ़ी एक्सपोर्ट कर रही है. क्या वो खुद से प्रोड्यूस कर रही है? क्या डोमेस्टिक मार्केट प्रोड्यूस कर रहा है बांग्लादेश का सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जा रही है? द आंसर इज नो, राइट. देयर हैव बीन कंट्रीज ओके जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं. सो EU अलाउज द इम्पोर्ट ऑफ अपैरल एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रॉम लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश ड्यूटी फ्री. सो द पॉइंट हियर इज दैट बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है EU और US को, तो EU है वो आपका काफ़ी दिलदार है. वो कहता है अरे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो उनसे हम कोई ड्यूटी नहीं लेंगे, आपकी सारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ माफ़. ठीक है, सो इसी की वजह से वो EU को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश वाले. Okay, sadly Bangladesh may not have such advantages in 4 to 7 years as its per capita income rises and it loses the LDC status. But now ठीक है, बांग्लादेश जो है वो काफ़ी it has been under development for a longer time and now it has lost the LDC status. सो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई है, तो ये खुशी की बात है. लेकिन उनका जो LDC स्टेटस था जिसकी वजह से उनके ऊपर ड्यूटी चार्जेस नहीं होते थे, तो वो अब हट चुका है. बट द पॉइंट इज दैट बांग्लादेश हैज़ ग्रोन ओके इट्स पर कैपिटा इनकम. बट बांग्लादेश इज वर्किंग स्मार्टली टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट बिजनेस. ओके, सो एक्सपोर्ट बिजनेस है, इट इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड इन बांग्लादेश. इंडिया इज़ अ गुड नेबर एक्सेप्ट्स ऑल बांग्लादेश प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री. सो हम भी कम दिलदार नहीं है, आपको पता है इंडिया वाले दिल वाले है ना. तो जो हम हैं दिल वालों ने ड्यूटी फ्री कर दिए हैं जितनी भी चीज़ें बांग्लादेश से आती हैं. ओके, बीइंग अ गुड नेबर, राइट. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ विच एलिमेंट्स ऑफ वियतनाम एंड बांग्लादेश मॉडल्स कैन इंडिया इम्यूलेट? क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इंडिया में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके, सो द पॉइंट हियर इज दैट सपोर्टिंग लार्ज फर्म्स. द
The key learning from Bangladesh is the need to support large firms for a quick turnover. ओके, सो जो लार्ज फर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ओके, हमने अभी प्रीवियसली बात करी है उसके बारे में. सो जो लार्ज टर्नओवर्स है वो आपको क्या लगता है कहाँ से आते हैं? वेरी ऑब्वियस थिंग इज दैट इट कम्स फ्रॉम द बिग कंपनीज, right? So India needs to support the large firms. Large firms are better positioned to invest in brand building, meeting quality requirements and marketing. Okay, small firms begin as suppliers to large firms and eventually grow. So यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बताई जा रही है जो हमें बांग्लादेश से सीखनी है कि आप लार्ज फर्म्स को सपोर्ट कीजिए एंड सप्लाई चेन में इन्वॉल्व कीजिए स्मॉल फर्म्स को. Okay, because see, small firms cannot generate the brand, right? These are the large firms which will generate the brand, they will improve the quality. Okay, वो एक ऐसा ब्रांड नेम तैयार कर सकते हैं जो कि सिर्फ इंडिया के नाम से चले, है ना? आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ इंडिया में बनती है एंड जो बाकी सारी कंट्रीज है वहाँ पे एक्सपोर्ट की जाए. सो ये सिर्फ लार्ज फर्म्स कर सकते हैं. अब इन लार्ज फर्म्स को ही सिर्फ सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना? ऐसा है ना कि अगर राजा और रानी खड़े हैं चेस में तो क्या होता है कि जो आपके प्यादे होते हैं, है ना, तो उनको तो होना ही पड़ता है ना, उनके बिना तो नहीं चल सकता खेल. तो वही है यहाँ पे कि जो आपके स्मॉल फर्म्स हैं उनकी हेल्प से हम लार्ज फर्म्स को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं बिकॉज दे विल जनरेट क्विक टर्नओवर. सो स्मॉल फर्म्स को कैसे हेल्प करें हम? वैल्यू चेन में, और जो सप्लाई चेन है उनको इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें, है ना? सो बोथ ऑफ देम विल इवेंचुअली ग्रो. फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स टू किक स्टार्ट ट्रेड. सो वियतनाम ने क्या किया है, कुछ डोमेस्टिक रूल्स को चेंज किया था, मैंने आपको बताया, उनको मॉडिफाई किया गया था जिससे कि फॉरेन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर सके. नाउ मोस्ट ऑफ वियतनाम्स एक्सपोर्ट हैपन इन 5 सेक्टर्स. सो ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर्स खोल दिए गए थे, ओके, उनको फ्लेक्सिबिलिटीज कुछ 5 सेक्टर्स में दी गई, ओके, जिससे कि उनका जो ग्रोथ था ट्रेड में वो इंक्रीज हो गया. इन कॉन्ट्रास्ट इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर मोर डाइवर्सिफाइड विच आर स्लो टू ग्रो बट नेवरदलेस प्रोवाइड्स रेजिलियंस टू ग्लोबल शॉक्स इन लॉन्ग टर्म. ओके, सो ऑल्दो इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट इज डाइवर्सिफाइड बट इट इज स्लो, है ना, इट इज स्लो टू ग्रो. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द सेक्टर्स जो कि फास्ट ग्रोइंग हैं, ओके, जिनकी डिमांड ज़्यादा है इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो हमें ऐसी सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है. नाउ व्हाट आर द वनरेबिलिटीज इन वियतनाम ग्रोथ मॉडल? तो हम वनरेबिलिटीज पढ़ रहे हैं कि वियतनाम ग्रोथ मॉडल्स में क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी, ठीक है, जिससे कि इंडिया सीख सकता है. हमें उनकी बुराई अच्छाई अडॉप्ट नहीं करनी, हमें सिर्फ उनकी अच्छाई अडॉप्ट करनी है एंड उनकी जो बुराई है उनको सुधार के हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ हाई एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो. ओके, सो वियतनाम्स EGR is 107%. Okay, so such a high dependence on exports bring dollars but also makes a country vulnerable to grow to global economic uncertainty. See, so much dependency on export is not a good thing, right? Because see, even if they are bringing more dollars in the country, but they would be vulnerable to global economic uncertainty. See, आपको पता नहीं है कि डॉलर का प्राइस कब कम हो जाए, कब बढ़ जाए, है ना? तो there would be there would be changes, and because of those changes, okay, which are totally uncertain, and because of that there would be problem, right? So much dependency on exports is not a good thing. The EGR of large economies exporting countries is a much smaller number. Okay, the US EGR is 100.7%, Japan's is 18.5%, India's is 18.7%. Even for China with all its trade problems, the EGR is 18.4% only. So the major point here is that कि जो आपका EGR है वो कम होना चाहिए. वियतनाम के केस में वो 100 से भी ज़्यादा है ना, इंडिया का 18 है. एंड सी, इवन फॉर चाइना with all its trade problems, उसका जो EGR है वो 18.4% है.
सी EGR का सिंपल सा मतलब है कि आप डॉलर पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, बिकॉज इट इज़ अनसर्टेन, द वैल्यू ऑफ डॉलर इज अनसर्टेन एज कम्पेयर टू योर डोमेस्टिक करेंसी, राइट? सो it is not good to be dependent on exports only. Lack of organic economic growth. Okay, the quick build up of exports in Vietnam resulted from large MNC investment. ना ऑब्वियस सी बात है कि जो MNCs है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो लार्ज फर्म्स है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, right? So in such cases national exports look large but the net dollar gain is small. So सारा खेल यहाँ पे डॉलर का ही है ना? सो ऑल्दो आपको लग रहा है दैट द देयर इज सो मच एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस कंट्री, सो इट इज अर्निंग मोर, बट द थिंग इज दैट इट इज अर्निंग इन डॉलर्स, right? It is gaining the economic growth in terms of dollar, and which is uncertain again. So this is the problem. Now what is the conclusion? India, unlike Vietnam, has a developed domestic and capital market, right? To further promote manufacturing and investment, India could set up sectoral industrial zones with pre-approved factory spaces, right? So these are some of the sectors where India needs to focus. Okay, they are talking about the manufacturing, and also it has to make some strategies which will attract the FDI and all. Even if India follows an open trade policy, it should have a healthy mix of domestic champions and MNCs. Okay, so even if it follows open trade policy, जिसमें कि क्या है कि आपकी फॉरेन फर्म्स जो है वो मस्त बिंदास ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, बट इंडिया ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ योर डोमेस्टिक चैम्पियंस. ओके, द कॉम्पिटिशन बिटवीन देम शुड बी फेयर. Okay, while export remains a priority, it should not be pursued at expense of other sectors of the economy. So they are talking about कि जितना export market grow करना चाहिए उतना ही domestic market grow करना चाहिए. Okay, there should not be any compromise on the side of your domestic economy and your domestic market. Okay, so that's about it. We have studied all the things about why Bangladesh and Vietnam have grown in the past 8 years, and also what are the things India needs to adopt from these two economies. Okay, now Atal Faculty Development Programs, FDPs, Faculty Development Programs. So Ministry of Education recently inaugurated 46 online AICTE training and learning. Okay, Atal Academy Faculty Development Program. So it is for the faculties. Okay, the higher education institutions associated with All India Council of Technical Education AICTE in emerging areas in technologies, right? The FDPs will be conducted in 22 Indian states according to new education policy. Okay, now objective of Atal Academy to provide quality technical education in India. Okay, so these are basically for the teachers and the educators who are teaching in the high educational institutions, right? So to promote research and entrepreneurship through training in various emerging fields, IITs, triple ITs, NITs, CU and research labs are organizing these Atal FDPs. So these are some of the highly esteemed institutions. So यहाँ पे आपके Atal FDP को launch किया गया है for the training of faculty in terms of your technical education. Okay, so I guess that was all from my side, and also I would like to announce that this is the last video that we are doing in terms of this November current affairs. Okay, we will not be doing any more video for the current affairs of November. Okay, we are done with all the articles and editorials which have been printed in your esteemed newspapers. Okay, and which are helpful for your examinations like UPSC, then RBI and SEBI examination. So we have discussed all of them, and also we have discussed them in comprehensive manner. Okay, so I hope you all liked the series and keep supporting us, keep learning with us. Thank you for listening.
And also let me know if you guys want some videos for the December current affairs as well. Okay, we'll be discussing them in a better way, I guess. Thank you all for supporting.